Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will take another chapter, rather unit of class 12th EVS subject, that is solid and hazardous waste management. जो यूनिट नंबर 4 है, that is solid and hazardous waste management. तो पहले हम देखेंगे कि आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे ऑफ द सॉलिड वेस्ट, पहले हम देखेंगे कि वेस्ट किसको हम कहेंगे। Waste is basically any discarded material which is released directly or indirectly in the environment, and it is useless or unwanted and keeps no value to the owner. यानी कि जो इसको छोड़ता है उसके मतलब लिए ये अब किसी वैल्यू का नहीं होता है, इसलिए तो उसके लिए यूजलेस होता है, अनवांटेड होता है। इसको हम वेस्ट करेंगे इन जनरल अगर हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक इन वेस्ट्स का ताल्लुक है, ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम दो तरह के वेस्ट्स देखेंगे। वन इज सॉलिड वेस्ट एंड hazardous वेस्ट। पहले सॉलिड वेस्ट्स कौन से वेस्ट्स होते हैं? दीज आर दोज वेस्ट्स, these include all those discarded materials which are other than liquids and gases। मतलब वो वेस्ट जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी कि लिक्विड और गैसेस फॉर्म्स के बगैर जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट हम रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में, उनको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो दीज वेस्ट आपको पता है, वेस्ट दीज आर यूजलेस, they are unwanted, so and these are released due to the combined activities of मतलब commercial activities, due to the other human activities। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स करते हैं उस दौरान ये सॉलिड वेस्ट दे गेट रिलीज और दे गेट जनरेटेड, तो एंड दे आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। दूसरा जो इसमें है hazardous wastes। hazardous wastes वो wastes होते हैं, these are those wastes which are harmful to the human beings, to the other animals as well as to the plants। यानी कि the wastes which are harmful to the health of humans, other animals as well as to the plants। तो इसमें अब अगर हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब hazardous wastes में बहुत सारे मतलब why they are hazardous, this is due to their reactivity, due to their ignitability, due to their corrosivity, तो due to their toxicity, this is why they are hazardous। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इन डिटेल, बट इन द लेटर मतलब लेटर पार्ट ऑफ दिस यूनिट। पहले आज हम जो बात करेंगे, we will talk about these solid wastes। As I have already told you about the solid wastes, so these are those wastes which are in solid form. These are useless, unwanted, but they exist in solid forms. So there are different sources from which these solid wastes get generated and are released into the environment, and due to their more and more release, due to their basically these solid wastes, they have led many problems, they have created health issues, they have created other environmental issues, and now it is the need to properly manage these, to do the proper management of these solid wastes, their disposal, their collection, their segregation, all that this is the need of the hour to manage these solid waste properly। तो अब हम
इसके इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या, मतलब कौन कौन सॉलिड वेस्ट में आते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट। पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, द ह्यूमन एक्टिविटीज, they are responsible for the generation of the different types of these solid waste। पहले अगर हम देखेंगे कि broadly मतलब these solid wastes they can be classified upon different criteria। जो इसमें हम देखते हैं ओरिजिन के हिसाब से, उनकी टॉक्सिसिटी के हिसाब से, उनके सोर्स के हिसाब से। बट यहाँ पे हम बात करेंगे इन जनरल the following types of the solid wastes are found generally, usually, in general we can classify the solid wastes into the following types. Number one, that is garbage. These are those solid wastes which get decomposed rapidly, which get degraded, which get decomposed rapidly। इनकी डिकम्पोजिशन बिल्कुल मतलब रैपिडली होते हैं। उनमें अगर हम देखेंगे कि जो फूड रेजिड्यूज होता है, प्लांट रेजिड्यूज होते हैं, एनिमल रेजिड्यूज होता है, मीट रेजिड्यूज होते हैं, तो जितने भी ये रेजिड्यूज होते हैं बिल्कुल ये जल्दी मतलब दीज आर इन सॉलिड फॉर्म एज वेल। Apart from that they gets degraded, they gets decomposed rapidly। तो उनको हम गार्बेज में रखेंगे। ये एक किस्म के सॉलिड वेस्ट हैं। दूसरे में अगर हम देखेंगे रॉबिश वेस्ट, ये वो सॉलिड वेस्ट होते हैं, they do not get easily, they do not get decomposed rapidly, they takes lot of time, or if they get decomposed, but they get decomposed very slowly, in a very slow manner। तो इनको हम इसमें रॉबिश में रखते हैं। इसमें हम देखते हैं आयरन होता है, प्लास्टिक होता है, गिलासेस होते हैं, तो रबर आता है, इसमें पॉलीथीन आता है, जिसके इनको रबिश हम कहेंगे। तो इस तरह तीसरे कैटेगरी जो है इन सॉलिड वेस्ट्स की, दैट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट्स वो वेस्ट्स होते हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सोर्सेज, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस यहाँ पे हम कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं रेजिड्यूज जो स्ट्रॉ ऑफ राइस होता है, वीट होता है, और अदर एग्रीकल्चरल प्लांट्स। तो इसमें ये फर्टिलाइजर्स भी हम कहेंगे कि ये इसमें आएंगे, इनको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसी तरह जो एक और टाइप है, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधी सी बात है, दे आर रिलीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इनमें आते हैं टॉक्सिक मेटल्स आते हैं, हेवी टॉक्सिक मेटल्स इनमें आएंगे। यहाँ पे भी पेस्टिसाइड्स भी आएंगे, फर्टिलाइजर्स आएंगे, या यहाँ पे सेवेज आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कुछ मतलब अदर पॉइजनस केमिकल इससे यहाँ से रिलीज होते हैं, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी कॉल द इंडस्ट्रियल वेस्ट। दे आर आल्सो सॉलिड वेस्ट के अंदर कैटेगरी ऑफ द सॉलिड वेस्ट। एक और है जिनको हम जंक वेस्ट कहते हैं, जंक्स। ये वो सॉलिड वेस्ट्स हैं विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द यूज्ड थिंग्स, जैसे कि मशीन्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, या इनके पार्ट्स होते हैं। इन मशीन्स के ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जो होते हैं, बिल्कुल ये जो वेस्ट होता है, दे आर जनरली दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी कॉल द जंक वेस्ट। तो ये भी सॉलिड वेस्ट होते हैं। एक और कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, हाँ
सीधी सी बात है that waste source itself indicates these are released due to the construction sites, from the construction sites as well as from the demolition sites. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसमें आएंगे मतलब it constitutes stones, bricks, iron, steel and mud as well. तो इसमें ये चीज़ें ये वेस्टेज आते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन एंड सॉलिड वेस्टेज कहते हैं. एक और कैटेगरी है जिनको हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज कहते हैं. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यानी कि MSW. ये वो वेस्टेज होते हैं. Basically, these are released from the homes, other commercial establishments, and these constitute those wastes which are collected by the local bodies, local governments, which are usually such as the municipal councils. तो इनमें ये मतलब इनको फिर collect करते हैं, and they also constitute the food wastes, which and other this garbage etc. तो इसमें भी आएगी. तो ये भी इनको कहेंगे municipal solid waste. तो एक और किस्म की वेस्टेज है जिनको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्टेज. बायोमेडिकल वो वेस्टेज होते हैं, these include anatomical wastes, pathological wastes, infectious wastes, and these are usually released from the healthcare facilities, हॉस्पिटल से इनका सोर्स होता है. एंड मेडिकल लेबॉर्ट्रीज इसमें आएंगे, केमिकल लेबॉर्ट्रीज आएंगे. तो इसमें से ये वेस्ट जो निकलते हैं मतलब दे इंक्लूड सिरिंज, बैंडेज तो इसमें आएगा, एंड अदर पॉइजनस केमिकल्स इसमें आएंगे. तो ये चीज़ें वहाँ पे या अदर मेडिसिन भी वहाँ से जो मतलब डालते हैं इन्वायरमेंट में, ये व्हाट वी कॉल द बायोमेडिकल वेस्ट. तो ये रही बात रिगार्डिंग द टाइप्स और द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट. अब हम देखेंगे कि इन वेस्ट यानी कि सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट. ये पहले हमने कहा कि क्लासिफिकेशन, अब हम सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. So far as the sources of the solid wastes are concerned, broadly there are, अगर हम broadly देखेंगे, there are two categories, there are two types of these sources of the solid wastes. One which we call the non-municipal sources, and other what we call that is called as the municipal sources. पहले हम देखेंगे कि non-municipal sources कौन से होते हैं. नॉन म्यूनिसिपल सोर्सेज में आते हैं, हाँ, इंडस्ट्रीज आती हैं, एग्रीकल्चर आता है, ऑयल माइनिंग आती है, ऑयल माइनिंग या गैस प्रोडक्शन आते हैं. ये वो सोर्स है विच कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी कॉल द नॉन म्यूनिसिपल सोर्सेज. एंड यहाँ से आपको पता होगा कि जो मतलब इसमें से फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर निकलता है. तो इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ से मतलब जो वेस्ट वाटर यहाँ से निकलता है, तो ये इस कैटेगरी में आता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज से निकलता है. तो इसी तरह एग्रीकल्चर से जो मतलब जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से निकला वो आते हैं नॉन म्यूनिसिपल सोर्सेज. It has been found they constitute almost 99% of the solid wastes in the United States. And apart from that, the other category is municipal sources. These are those sources which constitute or which includes the sources like residences, city buildings. तो वहाँ से जो solid wastes निकलते हैं इनको हम म्यूनिसिपल सोर्सेज में मतलब कैटेगराइज करते हैं. इस म्यूनिसिपल सोर्सेज एंड दिस ओनली अकाउंट्स जस्ट 1% इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये रही बात इन जनरल. लेकिन देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस और देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ दीज सॉलिड वेस्ट्स. अगर हम इनको एक एक करके इनका नाम यहाँ पे लिखेंगे तो पहला अगर हम देखेंगे कि that is what we call the residential sources.
देखो रेजिडेंशियल सोर्सेज में वही आते हैं विच मतलब विच इंक्लूड्स द रेजिडेंसेस। तो इसमें आएंगे रेजिडेंसेस एंड होम्स जो होते हैं ना, मतलब जो यहाँ घरों से निकलते हैं इसको हम कहेंगे रेजिडेंशियल सोर्सेज, जैसे कि गार्बेज वगैरह इसमें से निकलता है। दूसरा अगर हम देखेंगे इनका सोर्स जो है दैट इज इंडस्ट्रियल। Industrial, you know, there are different types, categories or different types of the industries. Like there are small and large scale manufacturing industries, light and heavy manufacturing industries. तो कैनिंग प्लांट्स होते हैं या अदर केमिकल प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होता है, यहाँ से जो ये भी सोर्स होता है इन सॉलिड वेस्ट्स के। तो तीसरा जो होता है उसको हम कहेंगे कमर्शियल, कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्स में आएंगे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इसी तरह शॉप्स एंड गोडाउन्स एंड अदर सेंटर्स। तो या सिटी मतलब जो यहाँ पे बाकी म्यूनिसिपल सेंटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कमर्शियल सोर्सेज। इन कमर्शियल सोर्सेज दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर sources where from the solid wastes are generated or produced। तो एक और कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन सोर्सेज। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, construction and demolition sources, these includes the construction sites like construction of buildings, railways, roads। जो वहाँ से मतलब वेस्ट निकलते हैं वो यहाँ उनको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन मतलब सोर्सेज या कंस्ट्रक्शन साइट्स जो। इसी तरह डिमोलिशन, जहाँ पे डिमोलिशन साइट होती हैं, किसी बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं, कोलैप्स होते हैं, जो वहाँ से निकलता है वो भी एक सोर्स बनता है किसका, इन सॉलिड वेस्ट्स का। तो हो गया एक और। नंबर 5 इट इज कमर्शियल के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, इस तरह म्यूनिसिपल सोर्सेज। हाँ म्यूनिसिपल सोर्सेज, तो इसमें तो हमने पहले ही मतलब बात की। इसमें आएगा सब कुछ जो कि अर्बन सेंटर से निकलते हैं, जो कि सिटीज से निकलते हैं, टाउन से निकलते हैं, जो कि वहाँ पे गॉर्बेज होता है या रबिश होता है, तो वहाँ से उसको हम कहेंगे म्यूनिसिपल सोर्सेज। तो वहाँ से भी ये मतलब बहुत सारा सॉलिड वेस्ट मतलब रिलीज होता है, जनरेट होता है। इस तरह अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये एक ट्रीटमेंट प्लांट्स दिस कॉन्स्टिट्यूट अनदर मेजर सोर्सेज ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट्स। तो एक और है हम मतलब एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर सोर्सेज this includes the farm yards, dairy farms, तो एग्रीकल्चरल फार्म्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक्ट एज करते हैं एज द सोर्स ऑफ द वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनको एग्रीकल्चरल सोर्सेज मतलब उसमें उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो इसी तरह मेडिकल जो होता है, बायोमेडिकल, बायोमेडिकल सोर्सेज, ये वो सोर्सेज होते हैं सॉलिड वेस्ट्स के। मतलब उसमें आएंगे हॉस्पिटल्स आएंगे, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज आएंगे, केमिकल लेबॉर्ट्रीज आएंगे। तो ये वो सोर्सेज होते हैं, इनको हम बायोमेडिकल सोर्सेज कहते हैं। तो आज हमने सैम्पली बात की रिगार्डिंग व्हाट आर द वेस्ट्स, व्हाट आर सॉलिड वेस्ट्स एंड व्हाट आर द हैजार्डस वेस्ट्स। तो इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे, सॉलिड वेस्ट्स के बारे में बात की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टॉक्ड ए लिटिल बिट रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट्स। ये कुछ सब टॉपिक्स हमने आज मतलब आज मैंने आपके साथ शेयर किए। तो basically what is more important in this unit, that is the management,
management of these solid wastes, how we can manage how we can dispose, how we can segregate, how we can collect these wastes, and how we can recycle them and utilize back them. तो इन चीज़ों पे हमें इस यूनिट में असल में बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि इंशाल्लाह इन द कमिंग टॉपिक वी विल टॉक द causes of these solid wastes apart from the impacts of these solid wastes. तो आज के लिए इतना ही. Till then, fi amanillah.